Hello everyone, here's Shashank Sekhar Singh from Target Academy, and in this lecture we are going to continue with the torsion of shaft, chapter of torsion of shaft. And in the first lecture we have seen that how torsion takes place and basically how the shear stress is induced in a shaft when a torque is applied on the shaft. Now in this case, in this lecture we are going to derive the equation of pure torsion, or we will analyze the situation of torsion in shaft. Alright, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपको ये जानना, और डेरिवेशंस जो है यहाँ पे जो हम लोग डेरिवेशंस करेंगे दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस. ऑलराइट, and you know, like the application of that equation of pure torsion, though the application will be heavily used, basically it will be heavily used in all the questions that has appeared in गेट एग्जामिनेशन. तो हम लोग ये थ्योरी खत्म करने के बाद जब हम लोग ये न्यूमेरिकल लेक्चर देखेंगे देन डेफिनेटली वी विल see how this equation of pure torsion has has played a very important role in solving numericals and solving questions, and definitely we can have a very good amount of marks whatever the question that might appear in the gate examination. In the coming examination also we can definitely solve those questions easily. Now while starting with the analysis of torsion, तो जैसे कि प्योर बैंडिंग में भी कुछ assumptions थे, है ना, we had some assumptions while deriving before derivation of the equation of pure bending. Now in this case also there will be some assumptions which will lead to the derivation of what, the equation of pure torsion. Now the first assumption is known as homogeneous and isotropic material of the shaft. What do you understand by homogeneous? Homogeneous means composed of the same material, and isotropic means all the properties like elastic properties, be it like E, G or K, all these properties or the Poisson's ratio and all are same in all directions. These are known as isotropic material. Alright. Now second thing, Hooke's law is obeyed and stress remains within proportional limit. Very nice. But when we talk about Hooke's law, generally it comes to our mind that Hooke's law है ना, जो उसमें डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. लेकिन जरूरी नहीं है ये सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए होगा. यहाँ जो Hooke's law अप्लाई होगा, इन दिस केस tau is directly proportional to the shear strain, है ना. shear strain का बारे में बात करेंगे, that is the angular displacement. And when we remove the proportionality sign, we will get a constant of proportionality which is known as modulus of rigidity. tau is equal to g phi. ये तो आएगा हम लोग का इक्वेशन यूज में आएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द ट्विस्टिंग कपल एक्ट्स इन वर्टिकल प्लेन्स ओनली. या वेरी नाइस. यहाँ जो प्लेन्स जो बन रहे हैं, जैसे कि ये रहा शाफ्ट, और शाफ्ट का जो ये जो एक्सिस है ना, सारे वर्टिकल प्लेन्स जो है, दीज आर द वर्टिकल प्लेन्स विच आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट. हो रहा है. नाउ दिस ट्विस्टिंग कपल एक्ट्स इन वर्टिकल प्लेन्स ओनली. तो ये वर्टिकल प्लेन जो होगा उसी में ट्विस्टिंग कपल काम करेगा, ऐसे करके यहाँ पे, यहाँ ऐसे काम करेगा, फिर ऐसे काम कर सकता है. एनीवेज इन एनी डायरेक्शन यू कैन कंसीडर. सो ट्विस्टिंग कपल विल एक्ट इन वर्टिकल प्लेन्स ओनली. हाँ, इसको आप ट्विस्टिंग कपल आप ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं कर सकते हो, इसको उधर बेंड नहीं कर सकते हो. ऑलराइट, तो ट्विस्टिंग वाज टेक प्लेस इन वर्टिकल प्लेन्स ओनली. द ट्रांसवर्स प्लेन का मतलब क्या हो गया? नाउ इन दिस केस व्हेन यू आर ड्राइंग दिस shaft, this is the plane, this is your axis, polar axis, and this is your plane which is known as transverse plane because this plane is at 90 degree to the polar axis. The transverse plane remains plane and do not warp. मतलब क्या हो जा रहा है, वो ट्रांसवर्स प्लेन जो है ऐसा करके वार्प नहीं होगा, वार्पिंग ऑफ ट्रांसवर्स प्लेन नहीं होगा generally due to the torsion. Basically in actual methods, in actual practice, warping does take place in case of materials, but in case of analysis, in order to derive it nicely, we do not want this warping of vertical planes or transverse planes, and definitely planes should remain plane even after the application of twisting couple. Alright, now equation of pure torsion के बारे में हम लोग थोड़ा सा derivations पे चलते हैं. Very important for university examinations. ठीक है, काफी important है. तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस जो है उस पर थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स लोग अभी यूनिवर्सिटी में देंगे एग्जामिनेशन, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. सो डेफिनेटली पे अटेंशन टू हाउ वी डिराइव इट. नाउ यू सी आई एम टेकिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट एंड दिस इज द साइड व्यू ऑफ द शाफ्ट. तो दिस इज योर साइड व्यू. ठीक है, साइड व्यू में लेके बात कर रहे हैं इधर. अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा. इन द क्रॉस सेक्शन वी आर कंसिडरिंग इन लाइक अ वेरी थिन like thin element, एक एलिमेंट ले रहे हैं at a distance of r, we are considering an element of thickness dr. तो एक स्ट्रिप ले रहे हैं, elemental strip of thickness of radius dr at a radius of dr from the center. ये सेंटर है ना. तो सेंटर O से हम लोग ले रहे हैं, रेडियस r पे एक एलिमेंट ले रहे हैं,
स्ट्रिप ले रहे हैं, एलिमेंटल स्ट्रिप, विच इज ऑफ द थिकनेस जो है उसका कितना हो रहा है, द थिकनेस इज dr. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ यू सी बिफोर एप्लीकेशन ऑफ टॉर्सन, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे थे विच वाज द पॉइंट ए, एंड आफ्टर द टॉर्सन, आफ्टर द ट्विस्टिंग कपल वाज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, ऐसे करके था, ठीक है, ऐसे लगाने के बाद ऐसे टॉर्क लगा रहे हैं. सो क्या हो रहा है इन दिस केस, यू नो देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट ए फ्रॉम ए टू बी. अब ये दूसरा पॉइंट जो ए था अब वो ट्विस्ट होके कहां पे आ गया, पॉइंट बी पे आ गया. एंड इन दैट केस on the transverse plane there was an angular displacement of how much, theta. very important, ठीक है. so while doing so, इसको अगर हम लोग साइड को देखते हैं तो पहले ए जो पॉइंट है, इट्स करस्पॉन्डिंग पॉइंट ए ऑन द साइड व्यू वुड बी दिस वन. अगर हम लोगों ने ट्विस्टिंग कपल ऐसे करके लगाया है, ठीक है, तो पॉइंट ए जो है वो कैसे शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, पॉइंट बी पे. क्लियर है? एंड डेफिनेटली इट हैज ट्रांसवर्स्ड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. So traversed in this direction, and while the point A shifts from A to B, definitely there is a displacement of phi. यही तो हम लोग का shear strain होता है. This is our shear strain. ध्यान रखना है इसमें, ठीक है. This is our shear strain. तो shear strain definitely हम लोग को मालूम है, because suppose if the material is something like this, and if we apply a certain amount of force like this, then this material will deform in this manner, in which case this will be phi. एंड दिस फाई, तो वही तो हो रहा है shear strain, तो वही तो हो रहा है पॉइंट ए से बी, यानी कि ये पहले ए था तो ए से चला गया कहां पे, बी पे जा रहा है. दैट्स इट, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका shear strain. क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे, and also we know one thing as the proper in case of angular 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 displacement जैसे हो रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ से एक पॉइंट जा रहा है और एक आर्क बन रहा है ऐसे करके, एंड द आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ थीटा एट द सेंटर. सो ये जो आर्क का वैल्यू है, रेडियस आर है, तो दिस आर्क विल बी इक्वल टू आर थीटा होगा. तो इन दिस केस द actual radius of the shaft is given as r, as I have mentioned here. Theta is the angle by which point A is twisted, you know, to point B on the elemental strip. On the elemental strip पे shift हो जा रहा है, point A ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, A से जा रहा है B तक, ठीक है. So while traveling from A to B, while you know shifting from A to B, definitely the angle subtended at the center is theta. So this is on the transverse plane. दिस इज योर वर्टिकल प्लेन है ना, इसी पे है ना. तो ये प्लेन पे हो रहा है, जो प्लेन हम लोग देख नहीं पा रहे हैं फ्रॉम साइड व्यू. दिस इज द वन विच वी आर फ्रीइंग फ्रॉम एंड व्यू. देख रहे हैं तो हम लोग को ये दिख रहा है. क्लियर है? नाउ फाई इज द एंगुलर डिफॉर्मेशन अलोंग द लेंथ ऑफ द शाफ्ट. देखो अलोंग द लेंथ ऑफ द शाफ्ट, द शाफ्ट का लेंथ दिया हुआ आपको एल है ना, एंड अलोंग द लेंथ ऑफ द शाफ्ट योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, फाई, एंड जनरली दिस इज नोन एज शियर स्ट्रेन. ठीक है. सो व्हेन ए इज ट्विस्टेड टू बी, यहाँ पे लिखा हुआ है. तो ये नो फ्रॉम हुक्स लॉ हम लोग को मालूम है, टाउ दैट इज शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू जी फाई, है ना. तो ये हम लोग का हुक्स लॉ से आ जा रहा है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एज्यूम्ड दैट हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल एट एनी पॉइंट. ठीक है, थ्रू आउट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क. सो टाउ इज हियर इन दिस केस इज योर शियर स्ट्रेस. जनरली मेगा पास्कल में हम लोग कैलकुलेट करते हैं. मेगा पास्कल इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि आपको रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट विल बी गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ mm ओनली, इन द यूनिट्स ऑफ mm. एंड g इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. ठीक है, ये भी आपको इधर गीगा पास्कल या फिर आपको मेगा पास्कल ऐसे में दिया हुआ रहेगा. ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी आपको जनरली फॉर द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट इट्स गिवन और मेंशन इन द क्वेश्चन. नाउ व्हाट अबाउट फाई? फाई इज योर एंगुलर डिफॉर्मेशन विच इज ऑल्सो नोन एज शियर स्ट्रेन, जो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ. अब देखिए, नाउ यू सी दिस आर्क on this end view or on the transverse plane, which is the same arc length here on the side view also or not. ठीक है, तो ये arc length का वैल्यू कितना होगा? In this case it will become, since the radius we are taking measures, this elemental strip is very thin, dr only, it is negligible when compared to r, small r. तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? r theta होगा. और in this case there is again an arc and the length is l. तो here we are, this is your center and this becomes your radius. Then this becomes L phi. R theta is equal to what? L phi हो जाएगा कि नहीं होगा? Because this is the same arc on the transverse plane and this is the same arc which we can see on the side view. Alright, where we can view the entire length of the shaft. तो ये हम लोग को मालूम चल गया यहाँ से. और ये जो arc है, arc AB is equal to arc कितना होगा? Arc AB हम लोग को कितना मिल रहा है? R theta. Also arc AB is equal to L phi, मैंने बताया था, है ना.
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, है ना. इन दिस केस दिस वाज द रेडियस आर एंड दिस वाज द रेडियस अगेन आर, दिस वाज थीटा. सो आर्क ए बी जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है आर थीटा. एंड सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ साइड व्यू, जो है ना, मैंने आपको यहाँ पे फिर से बना के दिखा दे रहा हूँ फॉर दैट यू डोंट हैव टू गो बैक अगेन. तो यहाँ पे आपको एल लेंथ लिया जा रहा है ना, एंड दिस इज द अमाउंट फाई, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो ये जो आर्क ए बी मिल रहा है यहाँ भी, वो भी आपका एल फाई हो जा रहा है. तो आर थीटा मस्ट बी इक्वल टू एल फाई और नॉट, बिकॉज दिस इज द सेम आर्क, है ना. सो आर थीटा इज इक्वल टू एल फाई. नाउ फ्रॉम we can displace phi, we can replace phi with respect to what, with your using your Hooke's law. तो हम लोग के पास था टाउ इज इक्वल टू जी फाई, तो वहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टाउ बाई जी. तो वही चीज हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे, देख लीजिए. आर थीटा इज इक्वल टू एल इंटू टाउ बाई जी फ्रॉम इक्वेशन 1, बिकॉज इक्वेशन 1 वाज आवर हुक्स लॉ, दिस वाज आवर हुक्स लॉ. ठीक है, क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. नाउ कंसिडरिंग द एलिमेंटल स्ट्रिप, है ना. अब ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप है क्या होगा, इसको देखिए. एलिमेंटल स्ट्रिप के बारे में कैसे डिटर्मिनेशन करना है. इसको अगर आप यहां से काट के इसको आप सीधा कर दो, यू स्ट्रेच इट एंड मेक इट स्ट्रेट, तो आपको कैसा स्ट्रिप मिलेगा. ध्यान से देखिए, यू विल गेट दिस स्ट्रिप और नॉट. 2 पाई आर का सर्कमफरेंस एंड डी आर वुड बी इट्स थिकनेस, है ना. तो आपको ये एरिया मिलेगा. देन द एरिया ऑफ द एलिमेंटल स्ट्रिप विल बी हाउ मच, 2 पाई आर dr. This is your small amount of area, है ना, 2 pi r dr. So definitely the tangential force, because you are applying, you know, torque on it, and since you are applying torque, there is induction of, you know, there is a shear stress here. This is shear stress, this is again shear stress. यहाँ shear stress मिल रहा है आपको. तो shear stress is acting on this पूरा, you know, like on this elemental strip. तो shear stress, whatever the shear stress is induced at that region because of the applied torque on the shaft, तो shear stress में अगर हम लोग वो elemental area को multiply कर दें, what will happen, है ना. Suppose shear stress, in that case we are applying force over certain area, then force by area of that surface area will be your shear stress. Now if you multiply shear stress with area, you will get the force. Then definitely if the area is an elemental area, then definitely you will get a small amount of force and on that plane. ठीक है, तो हम लोग को इस एरिया में, दिस इज योर एरिया इज डी ए, ऑन दिस एरिया अगर आपका टाउ लग रहा है ना, shear stress ऐसे लग रहा है, then shear stress into this area will give you the small amount of force or not. तो tangential force acting on the elemental strip, ठीक है. तो हम लोग को क्या होगा, ये फोर्स निकाला, ये फोर्स के वजह से ही हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क निकालेंगे, बिकॉज टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस एफ क्रॉस आर. सो मोमेंट ऑफ दिस एलिमेंटल फोर्स विल गिव यू टॉर्क ओनली, है ना. तो दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ shear स्ट्रेस काम कर रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा. तो फोर्स इनटू आर, बिकॉज रेडियस, यू नो, अगर आप वापस ऊपर देखो तो इस जगह पे, तो अगर आपका फोर्स ऐसे लग रहा है, सपोज फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस, है ना. तो फोर्स इनटू दिस रेडियस आर विल गिव यू द टॉर्क और नॉट, स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंटल एरिया. तो यही चीज तो हम लोग कैलकुलेट करने हैं, बिकॉज वी हैव गॉट वन रिलेशनशिप इन दिस फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो हम लोग को मिल चुका है यहाँ पे, देख लीजिए, है ना. ये मिल गया हम लोग को, इसी को एक तो shear स्ट्रेस और थीटा के बीच का रिलेशन मिल गया मुझे. नाउ वी हैव टू डेवलप वन रिलेशन विच इज रिलेटेड टू टॉर्क. तो टॉर्क के लिए हम लोग को मोमेंट ऑफ एलिमेंटल फोर्स लेना पड़ेगा, एंड दिस एलिमेंटल फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच, डी एफ इंटू आर. डी एफ के जगह हम लोग लिख सकते हैं टाउ इंटू 2 पाई आर डी आर. तो टाउ इंटू 2 पाई आर डी आर, वी हैव मेंशन दिस एज द फोर्स. डी एफ आर है जो यहाँ, एक और आर है जो यहाँ पे वापस से लिख दिया मैंने, तो ठीक है. तो दिस थिंग इज गिविंग यू एलिमेंटल टॉर्क, दैट इज, है ना, ट्विस्टिंग कपल dt. तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, यू विल हैव टू इंटीग्रेट, हेंस टोटल टॉर्क विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे, टाउ इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू आर. तो दिस इज योर एलिमेंटल टॉर्क, और टोटल टॉर्क हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस. तो टाउ के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पे हम लोग ने पहले क्या किया था, आर थीटा इज इक्वल टू एल फाई किया था, ये मिला था. फाई की जगह टाउ बाई जी लिख रहे थे. देन टाउ वी कैन राइट डाउन जी थीटा डिवाइडेड बाय एल, वी कैन राइट दिस, क्योंकि जी उधर जाएगा तो जी इंटू थीटा डिवाइडेड बाय एल नीचे आ जाएगा. तो जी थीटा बाय एल, और आर ऑलरेडी वहां पे है, सो वी कैन राइट डाउन टाउ इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल इंटू आर. तो टाउ की जगह हम लोग ने क्या लिख दिया, जी थीटा बाय एल इंटू आर. इज इट क्लियर, इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू आर. ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये r और ये r को हम लोगों ने कर दिया मल्टीप्लाई, तो हो गया r स्क्वायर.
नाउ फॉर एनी मटेरियल जी इज कांस्टेंट एंड फॉर एनी अमाउंट ऑफ ट्विस्टिंग, है ना, थीटा इज कांस्टेंट फॉर amount for a angle, for a certain amount of angle turned, theta will be maintained constant. L, that is the length of the shaft, is also constant. That's why it is coming out of the integration sign. Now you see 2 pi r dr, 2 pi r dr, this is your what, a dA, है ना. तो उसी तरीके से हम लोगों ने जब वहां किया था इन केस ऑफ बेंडिंग ऑल्सो, सो वी गॉट इंटीग्रेशन ऑफ यू नो dA इंटू वाई, है ना, ऐसे करके मिल रहा था. तो वी रोट डाउन लेस ए वाई बार, है ना, और डी ए इंटू वाई स्क्वायर अगर कर रहे थे तो यू वी यूज ऐसे वाई कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, तो ए वाई बार मिल रहा था. सिमिलरली इफ यू डिड डी ए इंटू वाई स्क्वायर, सो समेशन ऑफ ऑल द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, वहां पे हम लोग को मिल रहा था एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस मिल रहा था. ठीक है. नाउ इन दिस केस दिस इज द एरिया एंड आर, तो आपका एरिया जो है वो ऐसे करके है ना, और रेडियस आर पे है, तो यहाँ पे आपको एरिया मिल रहा है. सो इन दिस केस यू विल गेट पोलर मोमेंट ऑफ एरिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज गिवन बाय जे. ठीक है. तो जे इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इंटीग्रेशन ऑफ इच स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप का जो एरिया लेंगे उसको अगर हम लोग सेकंड मोमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड मोमेंट ले रहे हैं उसका फॉर ईच एंड एवरी रेडियस आर, तो फॉर ए पर्टिकुलर डी ए देयर इज सर्टेन रेडियस आर, दूसरा डी ए लेंगे तो वहां का रेडियस आर चेंज होगा, है ना, फिर और एक रेडियस लेंगे, है ना, तो देन अगेन दिस विल बी अगेन देयर विल बी डिफरेंट डीए, है ना, तो डीए 3 r3 ऐसे करके कर सकते हैं, है ना. बट इन दिस केस दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एरियाज मल्टीप्लाइड विद द आर स्क्वायर. दिस इज गिविंग यू द सेकंड एरिया मोमेंट ऑफ एरिया एंड इट इज अबाउट द विच प्लेन, इट इज अबाउट द पोलर एक्सिस, तो हेंस इट इज नोन एज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हो गया. तो हम लोग के पास टॉर्क का रिलेशन आ गया. दिस इज दिस वन, टॉर्क इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल इंटू जे. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट देम इनटू you know put them into a equation. ठीक है. तो देखो तो t by j लिख सकते हैं यहां से देखना. ठीक है. एक बार क्या करता हूं, थोड़ा सा जगह बना लेता हूं. इन दिस केस लेट अस मेक सम स्पेस फॉर राइटिंग डाउन सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. ठीक है. उससे क्या होगा, है ना. तो हम लोग को क्या मिला यहां से देखो तो, t इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल इंटू जे. तो मैं लिखते जा रहा हूं यहां पे, we have got t is equal to g theta by l into j. ये मिल गया हम लोग को, है ना. और दूसरा वाला हम लोग को क्या मिला था, टाउ के बारे में रिलेशन मिला था ना. तो टाउ का रिलेशन क्या मिला था, जैसे कि हम लोग को क्या मिला था, आर थीटा इज इक्वल टू एल फाई. फाई की जगह हम लोगों ने लिखा था यू नो टाउ बाई जी, है ना, आर थीटा. ठीक है. तो आर थीटा बाई एल, है ना, सो आर थीटा बाई एल इज इक्वल टू टाउ बाई जी. ठीक है. और जी को उधर ले जाओ. नाउ यू टेक इट जी ऑन द अदर साइड. तो टाउ बाय आर कर दो, आर को नीचे ले आओ और जी को ऊपर ले जाओ इधर में. सो व्हाट विल हैव हियर, टाउ बाय आर इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल. ठीक है. एंड हियर वी हैव टी बाय जे इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल. नाउ जी थीटा बाय एल इज ऑल्सो इक्वल टू टाउ बाय आर, सो दिस इज इक्वल टू टाउ बाय आर. सिंपल. दिस इज योर इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्सन. सो इक्वेशन क्या बन जा रहा है, इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्सन इज, इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्शन इज व्हाट इन दिस केस. तो इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्शन आपका बन रहा है टॉर्क डिवाइडेड बाय द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द शियर स्ट्रेस एट अ सर्टेन रेडियस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर, है ना. कोई एक पर्टिकुलर रेडियस पे मेजर कर रहे हैं, वहां देख रहे हैं. दिस आर कैन वेरी फ्रॉम यू नो दिस आर कैन वेरी फ्रॉम आर इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू द रेडियस ऑफ द शाफ्ट. ठीक है. अलग अलग पोजिशन पे अलग अलग होगा. And it is equal to g theta by l, where l is the length of the shaft, theta is the twisted or the twisting amount of twisting given to the shaft due to the torque T, and j is the you know this is your polar moment of inertia. Now using this equation we can solve a lot of questions from gate examinations. All right. तो हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स एज वी हैव ऑलरेडी डन इन केस ऑफ बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स. तो हम लोग का वहां से बहुत सारा चीज क्लियर हो गया और उसी को देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे. एंड इन द सेम वे आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर्स एंटायरली वी विल टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल्स दैट हैज अपीयर्ड इन गेट एग्जामिनेशन. सो डू नॉट वरी अबाउट इट एंड वी शैल हैव प्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स, प्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वेशंस इन द क्वेश्चंस ऑफ गेट. ऑलराइट. आगे बढ़ते हैं. एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है जानना यहाँ पे, पोलर सेक्शन मॉडुलस. पोलर सेक्शन मॉडुलस.
लेकिन हम लोग के बेंडिंग के केस में हम लोगों ने एक चीज पढ़ चुका है ऑलरेडी, विच वी से इट एज सेक्शन मॉडुलस। हम लोगों ने सेक्शन मॉडुलस पढ़ चुका है वहां पे, ठीक है। तो इन केस ऑफ बेंडिंग हम लोग ने सेक्शन मॉडुलस पढ़ा था। तो बेंडिंग के केस में वी हैव दिस इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग इज इक्वल टू एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, है ना, क्लियर है, इज इक्वल टू ई बाई आर। तो पहला दो पार्ट को ही लेते हैं हम लोग, लेट अस कंसीडर दिस वन। सो एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई लिख रहे हैं। इसको अगर हम लोग लिखें एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आई बाई, अगर वाई मैक्स ले लेंगे ना, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस, तो वाई मैक्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव a rectangular section, alright, this is the width is b and the depth is d. So in that case, suppose this is your neutral axis and a, so here we measure y from this part. तो यहाँ पे y is equal to 0 हो रहा है। अगर नीचे की तरफ जाएंगे, so at this point your y will be y max, है ना। तो y max यानी कि we are talking about the farthest fiber, distance of the farthest fiber from the neutral axis, and in this case this y max will be equal to d by 2, जो हम लोग करते आए हैं। So this I by y max is generally known as section modulus, which is given by z, यानी कि m is equal to sigma z, ठीक है। Any doubt in this? ठीक है। So for a particular section, कोई भी एक particular section का जहां पे y is equal to y max होगा ना, वहीं पे आपका sigma max भी होगा। Either here we will have tension, तो definitely on the other side we will have sigma max of compression. Simple. तो m इज इक्वल टू सिग्मा z मिल रहा है हम लोग को वहां पे सेक्शन मॉडुलस। इट वाज इन द केस ऑफ बेंडिंग। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पोलर सेक्शन मॉडुलस, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट पोलर सेक्शन मॉडुलस। तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे पोलर सेक्शन मॉडुलस के बारे में बात कर रहे हैं। तो पोलर सेक्शन मॉडुलस, जैसे कि सेक्शन मॉडुलस केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द बेंडिंग इक्वेशन, देन डेफिनेटली पोलर सेक्शन मॉडुलस व्हिच इज इक्वल टू zp विल कम फ्रॉम, you know, it will definitely come from the, it will come from the equation of pure torsion, all right। तो पोलर सेक्शन मॉडुलस के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, टॉर्क कैसे लिखते हैं देखो, टॉर्क डिवाइडेड बाय द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाय आर, है ना, इज इक्वल टू, है ना, जी थीटा बाय एल। ये हम लोग का इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्सन है। अगर हम लोग सिर्फ दो पार्ट को लेते हैं अगर इसको, तो इन दिस केस वी कैन राइट डाउन टाउ इज इक्वल टू टॉर्क, दिस इज टॉर्क इज इक्वल टू टाउ दैट इज शियर स्ट्रेस इनटू जे बाई आर, ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही जैसे ही आर का वैल्यू विल बी द मैक्सिमम, कहां पे हम लोगों ने पहले भी क्या लिया था, वाई का वैल्यू जब मैक्सिमम लिया था तब जाके सेक्शन मॉडुलस बना था। सिमिलरली हियर ऑल्सो इफ r इज इक्वल टू आर मैक्स, मैक्सिमम रेडियस के बारे में जाएंगे, एंड मैक्सिमम रेडियस विल बी योर रेडियस ऑफ द शाफ्ट, है कि नहीं। जैसे कि आपको देख लीजिए, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट, आप देख रहे हो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। सो यू कैन हैव शियर स्ट्रेस, यू कैन डिटरमाइन शियर स्ट्रेस एट एनी डिस्टेंस r, ठीक है। आप यहाँ पे शियर स्ट्रेस डिटरमाइन कर सकते हो a पे, लेकिन आपको मैक्सिमम शियर निकालना है तो यू हैव टू गो टू द फारदेस्ट डिस्टेंस वेयर दिस r रेडियस, स्मॉल रेडियस विल बिकम इक्वल टू द रेडियस ऑफ द शाफ्ट। तो ये पॉइंट बी पे हम लोग का टाउ मैक्स आने लगेगा, ठीक है नहीं। सो टाउ इज आर इक्वल टू आर मैक्स जब लेंगे विच इज इक्वल टू कैपिटल आर, है ना, तब वहां बन जाएगा, क्या मिलेगा देखो तो, इन दैट केस वी विल हैव टी इज इक्वल टू टॉर्क, सॉरी, टी इज इक्वल टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इनटू जे बाई आर मैक्स, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू टाउ इनटू जे बाई आर मैक्स की जगह हम लोग आर ऑफ द शाफ्ट लिखेंगे, वेयर आर इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस ऑफ शाफ्ट, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। सो रेडियस ऑफ शाफ्ट जैसे लिखेंगे तो जे बाई आर यानी कि जे बाई द रेडियस ऑफ द शाफ्ट विल बी योर सेक्शन, और यू नो दिस विल बिकम योर पोलर सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस क्या बन जाएगा, ये पोलर सेक्शन मॉडुलस विच इज डिनोटेड बाय ZP, एंड दिस इज इक्वल टू कितना होगा, J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय R। इज इट क्लियर टू यू, ठीक है। तो हम लोग यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन टॉर्क इज इक्वल टू, है ना, टाउ इनटू ZP लिख सकते हैं,
where tau is equal to become the tau max. ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका एनालिसिस करते हैं इस पार्ट का. ठीक है, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है इसका एनालिसिस थोड़ा सा करते हैं. यहाँ पे एनालिसिस में क्या होगा उसके बारे में सोचते हैं. तो डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स फॉर द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ मशीन डिजाइन बेसिकली, एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियर्स ऑल्सो. सो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है कि इफ वी टेक द हायर वैल्यू ऑफ जेड पी, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ द टॉर्क रिक्वायर्ड और नॉट. ठीक है, अगर पहला एनालिसिस, ठीक है, कि इफ जेड पी इज हाई देन द टॉर्क विल ऑल्सो बी हाई, है ना. टॉर्क रिक्वायरमेंट जो होगा वो भी बहुत ज्यादा चाहिए होगा. इसका मतलब क्या है कि इफ the polar section modulus has a higher magnitude, then definitely for the same amount of twisting के लिए you have to apply a higher value of what? Torque. So which signifies that shaft is stronger, shaft gets stronger with increase in what? Polar section modulus. ठीक है, तो shaft gets stronger with increase in polar section modulus. अगर इसको दूसरा तरीके से देखना है आपको, सेकंड मेथड, ठीक है, अल्टरनेटिवली, तो यू कैन सी टाउ इज इक्वल टू क्या होगा? टॉर्क डिवाइडेड बाय जेड पी. ठीक है, नाउ इन दिस केस यहां पे ध्यान से देखो, अगर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द जेड पी इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे if Zp is going to increase, then since Zp is in the denominator, that is polar section modulus is in the denominator, definitely the value of shear stress will go down, it will decrease, है ना. तो shear, if the shear stress, if the stress induced in the material in the shaft is decreasing or it is less, then definitely there will be less chance of failure. So when there is a less chance of failure, कब होता है chance of failure? कब कम होगा? When it will be less. Only when your shaft is strong, only when your material is strong. Material is stronger. यही है ना. ठीक है, इज इट क्लियर? तो अलग अलग चीज के लिए हम लोग अगर सेक्शन मॉडुलस डिटरमाइन कर लेते हैं, देखते हैं फॉर सॉलिड शाफ्ट देखते हैं और फॉर हॉलो शाफ्ट भी देखते हैं, दोनों देखते हैं क्या क्या है. ठीक है, तो फॉर सॉलिड शाफ्ट, ठीक है, तो हम लोग पहला बात करते हैं किसके लिए? सॉलिड शाफ्ट के लिए बात करते हैं कि क्या हो रहा है वहां पे पोलर सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू. सो इफ यू आर कंसिडरिंग सॉलिड शाफ्ट, देन डेफिनेटली इन दैट केस आई एम मेकिंग अ सर्कल है. तो ये हम लोग का सॉलिड शाफ्ट है, ठीक है, जिसका डायमीटर डी हम लोग को दिया हुआ रहेगा. ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पे डायमीटर डी है. ठीक है, दिस इज योर डायमीटर इज डी. ठीक है, सो हेयर वी हैव डायमीटर इज डी एंड दिस इज योर सॉलिड शाफ्ट. ये हॉलो नहीं है, पूरा मटेरियल से ये यहाँ पे इट इज एंटायरली मटेरियल ऑल थ्रू आउट. ठीक है, तो यहाँ पे पोलर सेक्शन मॉडुलस के बारे में डिटरमाइन करना है. वी हैव टू डिटरमाइन जेड पी एंड जेड पी इज इक्वल टू जेड बाई आर, जे बाई आर. नाउ इन दिस केस पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दिस केस जे कितना होता है? दिस इज पाई डी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय व्हाट? 32 होता है ये, है ना. एंड आर इन दिस केस डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द डायमीटर. सो हेयर इन दिस केस जेड पी पोलर सेक्शन मॉडुलस इन दिस केस विल बी पाई डी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 32 एंड रेडियस की जगह हम लोग ले सकते हैं d by 2. सो इन दिस केस वी कैन कैंसल आउट 2 से ये चला गया 16 एंड इफ आई कैंसल 1 d देन वी आर लेफ्ट विथ 3 इन द पावर. सो वी विल हैव पाई डी क्यूब बाई 16. ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको. ऑलराइट, सॉलिड शाफ्ट ध्यान में क्या रखना है? जे बाई आर आप आराम से निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ फॉर द सेकंड केस, सेकंड केस हम लोग का बन रहा है हॉलो शाफ्ट. तो हॉलो शाफ्ट भी हो सकता है कि नहीं? तो हॉलो शाफ्ट में 2 डायमीटर मिलेगा आपको. सो वी कैन ड्रॉ दिस इजिली. ध्यान से देखिए. ठीक है, तो एक तो डायमीटर D1 एक्सटर्नल डायमीटर, तो एक्सटर्नल डायमीटर को हम लोग क्या करेंगे? इसे कर लेंगे, कैपिटल डी से देख लेंगे. ऑलराइट, नाउ इन दिस केस वी विल हैव इंटरनल डायमीटर एज, तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा ताकि ज्यादा ऑकवर्ड ना लगे यहाँ पे. लेट अस सी, आई विल जस्ट एडजस्ट इट. ठीक है,
तो काफी ठीक है, आपको समझ में तो आ ही जाएगा यहाँ से, है ना। सो इन दिस केस वी विल हैव, यू सी एक्सटर्नल डायमीटर एज, बाहर से देखते हैं, ये हम लोग का मिल रहा है, बाहर का डायमीटर इज डी, कैपिटल डी, एंड स्मॉलर डायमीटर वी हैव एज स्मॉल डी, ठीक है, एंड वी हैव द मटेरियल ओनली इन दिस रीजन, ठीक है, दिस इज योर हॉलो शाफ्ट। हो गया, अब काफी समझ में आ गया अच्छे से। तो इन दिस केस वी कैन हैव यू नो जेड पी, दैट इज पोलर सेक्शन मॉडुलस, इज इक्वल टू जेड जे बाई आर, वेयर जे इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जे हम लोग लिख सकते हैं, डेफिनेटली वी कैन राइट डाउन पाई डी टू द पावर 4 माइनस डी टू द पावर 4, बिकॉज इट्स हॉलो। सो हम लोग को उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय हाउ मच, डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। तो इसको अच्छा थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं। तो यू नो मैंने सोचा कि यहीं पे रेशियो लेना है, बट नहीं, यहाँ पे आई एम जस्ट राइटिंग डाउन जे का वैल्यू। सो पाई डी टू द पावर 4 माइनस डी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 32, जे मिल गया हम लोग को। एंड आर वी कैन राइट डाउन मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेडियस क्या होगा, इट इज द आउटर रेडियस ओनली, नॉट द इनर रेडियस। सो दिस इज योर आउटर रेडियस, कैपिटल आर इज इक्वल टू व्हाट, डी बाई 2, होगा कि नहीं होगा। सो आर इन दिस केस विल बिकम डी बाई 2, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे स्मॉल डी बाई 2 नहीं ले लेना है, बिकॉज वी हैव टू गो टू द फार्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो हेयर वी विल हैव पोलर सेक्शन मॉडुलस जेड पी इज इक्वल टू जे की जगह क्या लिखेंगे, वी कैन राइट डाउन जे एज पाई डी टू द पावर 4 माइनस डी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 32, एंड इन दिस केस डिवाइडेड बाई, वी विल राइट डाउन आर का वैल्यू, वी कैन राइट डाउन डी बाई 2, ठीक है। सो हेयर वी विल हैव 16, and in this case we can write down pi d to the power 4 minus d to the power 4 16 into d, clear है। this is your zp, is it clear। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। सो हम लोग दो तीन टॉपिक के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, एक दो छोटे छोटे चीज के बारे में देख लेते हैं, एंड दैट विल बी एनफ फॉर अस इन दिस लेक्चर। पहला चीज जो हम लोग बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द टॉर्सनल रिजिडिटी। बहुत क्वेश्चन आता है इसमें, टॉर्सनल रिजिडिटी पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो टॉर्सनल रिजिडिटी इज डिनोटेड बाय टी आर, टॉर्सनल रिजिडिटी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या, it is defined as TR is defined as it is a product of G into J, ठीक है। G आपका हो जा रहा है shear modulus या modulus of rigidity, this is your modulus of rigidity, ठीक है। and J is our polar moment of inertia, we have polar moment of inertia as J, ये तो है हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये टी आर जो है, कभी कभी आपको जी और जे का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा, तब टॉर्सनल रिजिडिटी आपको कैसे निकालना है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरा कुछ डेटा भी दिया हुआ सकता है। सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्सन वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्सन, इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्सन से करना है, कैसे करना है देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्सन क्या है, टी बाई जे है ना इज इक्वल टू व्हाट, टाउ बाई आर इज इक्वल टू व्हाट, जी थीटा बाई एल, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, जी इंटू जे चाहिए, है ना। सो वी वांट जी इंटू जे एज अ टॉर्सनल रिजिडिटी। तो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं, इसको और इसको, ये दोनों को देखते हैं, एंड लेट्स सी दिस टू एक्सप्रेशंस व्हाट वी विल हैव हियर, टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल, ठीक है। नाउ हियर वी विल हैव टी इंटू एल बाई थीटा, है ना, इज इक्वल टू जी इंटू जे, और ये आपको ना थीटा हमेशा रेडियंस में लेना है, यू हैव टू टेक थीटा ऑलवेज इन रेडियंस, ध्यान रखना है चीज, ठीक है। तो जी इंटू जे तो आ गया आपके पास, एंड दिस इज योर टॉर्सनल रिजिडिटी, दिस इज योर टॉर्सनल रिजिडिटी, है कि नहीं है। सो अगर आपके पास जी और जे का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन आपको ट्विस्टिंग मोमेंट दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द शाफ्ट दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, तब आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपके पास डेटा सफिशिएंट नहीं है टॉर्सनल रिजिडिटी डिटरमाइन करने के लिए। यू कैन डिटरमाइन टॉर्सनल रिजिडिटी यूजिंग दिस 3 डेटा ऑल्सो। प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है ये क्वेश्चन, दिस हैज अपीयर्ड इन द प्रीवियस ईयर्स, यू कैन गो एंड सी दिस क्वेश्चन इन द बुक,
ऑलराइट. नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, टॉर्सनल रिजिडिटी तो हो गया, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टॉर्सनल स्टिफनेस. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टॉर्सनल स्टिफनेस. टॉर्सनल स्टिफनेस. ठीक है. तो टॉर्सनल स्टिफनेस क्या होता है ये देखिए. So torsional stiffness, it is defined as the torque required to produce the angle of twist. It is defined as a torque required to produce unit angle of twist. ठीक है. So definition के हिसाब से अगर देखना जाता है तो torsional stiffness is the torque required to produce unit angle of twist. यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट. ठीक है. इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है कि टॉर्सनल स्टिफनेस जो है ना, दैट इज टॉर्सनल स्टिफनेस इज द हाउ मच अमाउंट ऑफ टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एंगल ऑफ व्हाट, ट्विस्ट. टी बाई थीटा का वैल्यू निकालना है आपको. तो टॉर्सनल स्टिफनेस इज नथिंग बट टी बाई थीटा. तो टी बाई थीटा को हम लोग क्या, टॉर्सनल स्टिफनेस को हम लोग के से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल के. सो इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्सन से हम लोग निकाल सकते हैं. फिर से देखो, इक्वेशन ऑफ प्योर टॉर्सन क्या है, टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल, है ना. बीच में हम लोग को शियर स्ट्रेस की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे. वी वांट टी बाई थीटा, यही तो चाहिए हम लोग को, टी बाई थीटा. थीटा नीचे आएगा तो जे ऊपर जाएगा. इट इज इक्वल टू के एंड इज इक्वल टू जी इंटू जे, यानी कि शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मल्टीप्लाइड विथ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द शाफ्ट. तो के की जगह हम लोग एक और चीज ले सकते हैं, बिकॉज जी इंटू जे इज नथिंग बट टॉर्सनल रिजिडिटी. दिस इज आवर टॉर्सनल रिजिडिटी. टॉर्सनल रिजिडिटी डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द शाफ्ट विल आल्सो गिव अस टॉर्सनल स्टिफनेस. तो ये सब चीज ना एमसीक्यूज और एमएसक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यूज और मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस के लिए यहां से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं. आपको कंफ्यूज नहीं होना है. while writing down this, like while watching this video, pause the video and take down the note by yourself so that you can easily remember till the time your gate examination is ahead, like while you are appearing in the gate examination. All right. इस पे हमेशा ध्यान रखना है. whenever you are watching a video, you use pen and paper, write down by yourself. तो आप खुद से समझ के लिखो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. टॉर्सनल स्टिफनेस हो गया. नाउ द थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज नोन एज टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी. तो इसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं. टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी, तो स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी आर टू अपोजिट टर्म्स. ठीक है. टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड टॉर्सनल स्टिफनेस आर टू जस्ट अपोजिट टर्म्स. तो टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी को हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टॉर्सनल स्टिफनेस. रेसिप्रोकल ऑफ टॉर्सनल, सॉरी, it is a reciprocal of torsional stiffness. ठीक है. तो रेसिप्रोकल ऑफ टॉर्सनल स्टिफनेस कैसे होगा, ध्यान से देखो. बिकॉज टॉर्सनल स्टिफनेस को हम लोगों ने निकाला था, इट वाज द अमाउंट ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट. देन डेफिनेटली टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, दैट इज टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी. अगर लिखते हैं हम लोग टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इट विल बी थीटा बाई टी. एंड डेफिनेटली इन दिस केस टाउ बाई थीटा इन टॉर्सनल स्टिफनेस हम लोग को मिला था जी जे बाई एल. हियर वी विल गेट एल बाई जी इंटू जे. सिंपल सा बात है. क्लियर है. सो दिस इज द एंड ऑफ सेकेंड लेक्चर. ठीक है. ये सेकेंड लेक्चर का एंड होता है यहाँ पे. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिजाइन ऑफ शाफ्ट एंड द पावर रिक्वायरमेंट और द पावर प्रोड्यूस्ड इन अ शाफ्ट due to the power transmitted by shaft, and then we will talk about the combination of shafts, which will be the last thing that we have to discuss. All right, आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेयर आई विल बी फिनिशिंग अप द एंटायर टॉर्सन ऑफ शाफ्ट का चैप्टर, and definitely it will help you to understand a lot of things regarding the theoretical part as well as its application of theory into the numerical part also. I'll see you in the next class. Till then, take care and stay safe, and please revise well. If there is any doubt from any part of the video, you can send me the doubts. You can comment in the comment section, as well as you can drop a message also on WhatsApp. Then definitely your doubt will be addressed within no time, and I'll see you in the next class. Till then, take care.